الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج کی اس ویڈیو میں جو ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے نکاح اور شادی۔ نکاح اسلام میں ایک عبادت ہے، لیکن جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے نکاح کیا تھا، کیا اس طریقے سے ہم اس وقت نکاح کر رہے ہیں، شادیاں کر رہے ہیں؟ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے یہاں جب شادی کا ڈیٹ فکس ہو جاتا ہے تو پہلے ہم لڑکی والے کے گھر جاتے ہیں، 10 لوگ 20 لوگ 50 لوگ لے کر۔ یہ بالکل بھی شریعت کے خلاف ہے۔ وہاں جا کر لڑکی والے بیچارے پریشان ہوتے ہیں، اتنے لوگوں کا کھانے کا انتظام کرنا، پھر طرح طرح کی چیزوں کا انتظام کرنا، پتہ نہیں وہ ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، قرض لیتے ہیں، لیکن اس کو وہ کرتے ہیں کیونکہ آنے والے لوگ مہمان ہیں۔ اسی طریقے سے الگ الگ لوگ جن کو لڑکی کو نہیں دیکھنا چاہیے وہ بھی جا کر لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، اور کہیں اس لڑکی کو ریجیکٹ کر دیا تو اس لڑکی پہ کیا گزرتی ہوگی۔ ارے 1-2 لوگ گئے، باپ گئے، بھائی گئے، بہن گئی یا امی گئی، کوئی بھی خالہ میں سے کوئی چلی گئی، وہ دیکھ کر چلی آئی، تو یہ بہتر طریقہ ہے۔ یا تو اگر لڑکے کا دل کر رہا ہے دیکھنے کو تو شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ باقاعدہ گھر پہ بلا کر نہیں، کہیں فنکشن میں، کہیں جلسے میں یا کہیں اسکول جانے میں لڑکا اس کو دیکھ لے اور اس کو زندگی گزارنا ہے اس کے ساتھ، تو یہ بہتر طریقہ ہے، اس طریقے سے دیکھ سکتا ہے۔ لیکن یہ جو ہے گاڑیوں کے گاڑی بھر کر جاتے ہیں اور وہاں کھا کر اور چلے آتے ہیں، پھر اس کے بعد جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، پھر فلاں چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں اور پھر آ کر انکار کر دیتے ہیں، تو یہ ان کے گھر والوں کو بھی تکلیف ہے، لڑکی کو بھی تکلیف ہے۔ اس وجہ سے ہماری بچیاں، مسلم بچیاں خودکشی کر رہی ہیں اور غیروں کے ساتھ جانے پر مجبور ہو جا رہی ہیں۔ اب شادی فکس ہو گئی، نکاح کا ڈیٹ فکس ہو گیا، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ 1 مہینہ پہلے، 2 مہینہ پہلے خوب دھوم دھام سے تیاریاں کرتے ہیں، رشتہ داروں کو کارڈ بھیجتے ہیں، دوستوں کو کارڈ بھیجتے ہیں، جبکہ کارڈ اور اس طریقے کا کچھ انتظام کرنا شریعت کے خلاف ہے۔ آپ فون کے ذریعے یا آپ وہاں جا رہے ہیں تو وہاں جانے کے ذریعے جو ہے آپ ان کو اطلاع دے دیں کہ میرے یہاں فلاں دن نکاح ہے، لیکن کارڈ میں بھی ہزاروں روپے، لاکھوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، اور ایسے ڈیزائن کے کارڈ جس میں ہم فضول خرچی کر رہے ہیں، اور فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ پھر اس کے بعد گھر کو سجاتے ہیں، گھر کی پینٹنگ کرتے ہیں اور الگ الگ قسم کی چیزیں لاتے ہیں۔ نکاح تو ایک آسان ہے اور اس کو سادے طریقے سے کرنا چاہیے، ایجاب و قبول ہو گیا، ولیمہ کر دیا، کام ختم ہو گیا۔ وہ بھی نکاح آپ ایسی جگہ پہ کیجئے جہاں سکون اور اطمینان کی جگہ ہے، جیسے مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے۔ نکاح کو آسان بنایا جائے۔ ہماری بہت ساری بہنیں جن کے ماں باپ مجبور ہیں، جن کے پاس اتنی طاقت اور قدرت نہیں ہے، وہ مجبور ہے، بیچاری گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ انتظار کر رہی ہے کہ کوئی ایسا آ جائے جو ان کی بیٹی کو بیاہ لے جائے، جو نیک اور صالح ہے۔ لیکن ہم لڑکے والے کیا کرتے ہیں؟ نہیں، ان سے مطالبات کرتے ہیں، ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فلاں چیزیں ہمیں ہونا ہے، اور ہمارے باراتی 150 آئیں گے، 200 آئیں گے، 1000 آئیں گے، اس طریقے کا ڈیمانڈ وہ رکھتے ہیں۔ اب وہ جو لڑکی والے بیچارے ہیں وہ قرض لے کر، سود پہ پیسہ لے کر یا ادھار لے کر اب اس کا انتظام کرتے ہیں۔ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ یہ لڑکے والے ہیں، کیونکہ ان کی ناک نہ کٹنے پائے، ان کی عزت نہ جا پائے۔ اگر اتنے لوگ نہیں جائیں گے باراتی میں، 2-4 لوگ گئے تو ان کی بے عزتی ہوگی۔ نکاح میں دراصل آپ 2-4-5 لوگ گھر کے گئے، وہاں آپ ایجاب و قبول کر کے چلے آئے، وہ بہتر طریقہ ہے۔ لیکن جو وقت قریب آتا ہے، دیکھیے ہمارے اندر
हमारे मुसलमानों के अंदर कैसे बिदात और खुराफात और रसूमात है, उसको हम आ, आ, वाज़े करने की कोशिश करेंगे। जैसे शादी करीब आई, उधर लड़की वालों के घर उनको हल्दी का रस्म होता है, और हल्दी का भी रस्म कैसे हो रहा है, उसके लिए बाकायदा स्टेज सजाया जाता है। ये गैरों का तरीका और जाहिलों का तरीका है। इसमें फजूल खर्चियां हैं, 1000 रुपए लगाते हैं, 10,000 लगाते हैं, स्टेज सजाते हैं, डीजे बजाते हैं, और ऐसी औरतों को बुलाते हैं जिनका हमारे बदन को छूना जायज नहीं है, हराम है, लेकिन वो हमें हल्दी लगाती है, और हमारे घर पता नहीं क्या क्या ड्रामे करते हैं। फिर उसके बाद स्टेज लगाकर उनको 2 दिन 3 दिन तक हल्दी लगते हैं, और फिर इस तरीके के बिदात और खुराफात, इस तरीके की बेहयाई और बेशर्मी उसमें की जाती है, जिसका इस्लाम से और शरीयत से कोई दूर दूर तक का इसका ताल्लुक नहीं। लेकिन गैरों का तरीका हमने अपना लिया है। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिन, जो गैरों का तरीका इख्तियार करता है वो उन्हीं में से है। लेकिन शादी में हंगामे ना हो, शादी में गाना बजाना ना हो, शादी में गाना ना हो, शादी में डांस ना हो, रिमिक्स ना हो, क्लाइमेक्स ना हो, तो वो शादी कैसी? ऐसा हमारा मुआशरा है। जिसके घर में पढ़े लिखे हैं, दीनदार हैं, वो भी ऐसा कर रहे हैं। जिनको शरीयत का इल्म है कि शादी बिल्कुल शादी होनी चाहिए, लेकिन वो भी पूरे धूम धड़ाके के साथ और आ, हंगामे के साथ इस तरीके की शादी और निकाह कर रहे हैं। वो स्टेज सजाना, वहां मर्द को मेहंदी लगाना, और मर्द के साथ पता नहीं क्या क्या बिदात है, इस तरीके की रस्में करना, ये सब नाजायज और हराम है। ये सब चीजें शरीयत के अंदर नहीं है, लेकिन हमने गैरों का तरीका लिया है और बोलते हैं कि फला कर रहे हैं, फला कर रहे हैं, फला जहन्नम में जाएगा तो आप भी जाएंगे उसके साथ जहन्नम में। ये गैर शरई तरीका है, इसको बिल्कुल भी छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। और जो इस तरीके का कर रहे हैं और इस पर डटे हुए हैं, वो गुनाह कबीरा में मुलव्विस है। जब तक वो तौबा नहीं करेंगे, वो अल्लाह तबारक व तआला उनको माफ नहीं करेगा। 2-3 बिदात आज हम बयान करेंगे, और बहुत सारी चीजें हमने बयान की हैं। फिर इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम उसको बयान करने की कोशिश करेंगे। एक तो है बरी ले जाना, यानी लड़के वालों का बारात के साथ कपड़ा, जेवर और हांडियों में मेवा वगैरह ले जाना, फिर उन चीजों को सबके सामने बाकायदा दिखाना, उस पर तबसरा करना। लड़के वालों की तरफ से बारात ले जाई जाती है, 150 बारात होती है, हजारों की बारात होती है, और उसके साथ कपड़े ले जाते हैं तरह तरह के, किस्म किस्म के। एक कपड़े नहीं, 2 कपड़े होना है, 10 कपड़े होना है, या 1 डजन होना है, और उसके साथ जेवर ले जाना है, और हांडियों में मेवा भर के ले जाते हैं, काजू है, बादाम है, पिस्ता है, और पता नहीं बहुत किस्म की चीजें हैं जो ले जाते हैं। फिर उन चीजों को बाकायदा लोगों के सामने नुमाइश के तौर पे पेश किया जाता है कि देखो ये लड़के की तरफ से आया है, और आप देखिए कि हम कितने बेहया और बेशरम है, और ये देखिए कि हम कितने अल्लाह की नाफरमानी करने वाले, कितने रसूल की नाफरमानी करने वाले हैं। देखिए ये चीजें एक ऐसे ऐसे लोग पेश करते हैं जिनको तमाम चीजें मालूम होती हैं, इल्म रखते हैं, फिर भी ये चीजें ले जाते हैं। इसी तरीके से दूसरी चीज बयान की गई, बात करना, यानी लड़की की माँ अपने घर वालों यानी लड़के के नाना नानी मामू, जो लड़की की माँ है और उसके घर वाले हैं, लड़की के नाना है, नानी है, मामू है, खाला है, जो भी होते हैं, खाला वगैरह को निकाह से पहले दावत देना, और नकद कैश और दीगर चीजों का मुतालबा करना, फिर उन लोगों का उन चीजों को ले जाना, उनका चर्चा करना, पब्लिसिटी करना, शोहरत करना, दिखावा करना, और थाल में पैसा डालना। ये सब रसूमात और ये सब खुराफात कहाँ से आए? ये सब गैरों का लिया गया है, और इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। बिदात पे आपको डटना नहीं है, उसको छोड़ने की कोशिश करना है।
बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि माँ है बाप है बोलते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम आपकी शादी में, आपके बेटे के शादी में शरीक नहीं होंगे। लेकिन आप, माँ ये बोल रही है कि हम शादी में शरीक नहीं होंगे, बात नहीं करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शरीयत का हुक्म तोड़ने से बेहतर है कि आप अम्मी की बात न माने, और मानना भी नहीं। जिस बात में अल्लाह और रसूल की नाफरमानी हो रही है उसमें किसी की भी बात नहीं चलेगी, चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे खाला हो, रिश्तेदार का कोई भी शख्स हो, वो बल आपसे कितना ही नाराज हो जाए, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह के लिए आप ये काम कर रहे हैं तो अल्लाह आपसे खुश और राजी है। फिर उन चीजों में हम डिमांड करते हैं लड़की वालों से। अरे अल्लाह ने आपको दिया है, आप भिखारी क्यों बनते हो? आप भिखारी हो, फकीर हो, इंटरनेशनल फकीर हो, मांगने वाले हो। इससे बेहतर है कि आप कटोरा लेकर सड़क पर फिरते और बोलते कि मुझे शादी करने का है और मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन तुम लड़की वालों से हाथ फैला रहे हो, भीख मांग रहे हो, गाड़ियां मांग रहे हो, और फ्रीज मांग रहे हो, कूलर मांग रहे हो, सोफा मांग रहे हो, और जमीन वो जायदाद मांग रहे हो, प्रॉपर्टी मांग रहे हो। ये एक भिखारी का काम है। शरीयत के अंदर ऐसा कोई मुतालबात नहीं है कि लड़की वालों से आप जहेज का मुतालबा करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें शादी को आसान बनाने की कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए, और ये जो शादी के अंदर रसूमात और खुराफात चल रहे हैं इनको हमें दूर करने की तौफीक अता